Hello, my dear friends. I am welcoming you to this new video where we will learn about SQL. Everything about SQL. SQL क्या है from the basics, from advanced Excel, and the third one which we use in organizations, which is the practical one. We will do this all here in this video. It is a series of video. We will learn everything, okay, from the scratch. It may be one, two, three, or maybe four kind of video will be here. And why I'm using English? Because most of the time I will use English because I want to improve my English. Okay, it is a little bit improved, but I want to improve it more. Second one, why I'm teaching? Because I like teaching. I like telling others that what I knew I want to tell others. It is called something adding value or solving the problems. Okay, I can move it here as well because if I am seeing in the camera, my eyes are going here and there. Okay, I will not waste most of the time, your time. Okay, let's jump into the work. The third thing also, I knew this that if you tell others, if you teach others, you get most of it into your mind. So I want to keep that thing. Whatever I will teach, I will tell here, I will tell in these videos, I will keep that in my mind as well. So let's jump into our work. You can see here we have made the outline. What is data, database, certain kind of things. And also I have made this document, Google Doc, where I also mentioned this. So let's start working on this. First is data. What is data? As you already knew, data which contain information like an image, any text, any video, anything. This is called in data. And when then data, that information, that text, that image collected in organized in certain way, it's called database, where the collection सारी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई, डेटाबेस बन गया. अब इस डेटाबेस को द डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग? टू change, for example, the database of excel sheet, excel sheets which has thousands of rows, numerous columns. For example, in my organization, for example, I'm in an organization. It is the detail of employer IDs, name, their location, their department, certain all the things. Okay, it is what is it that it is database. So what is the meaning of managing that? To find out something from that, कि भाई एक को निकालो कि जिसका सैलरी इतनी है, जिसकी लोकेशन गाजियाबाद है और जिसकी ईमेल आईडी ये वाला डोमेन है. फाइंड आउट ये काम कौन करता है, किसके थ्रू होता है? DBMS के थ्रू. बहुत आसानी से होता है. Otherwise you can do it by the excel sheet as well, by filtering, by some kind of things. But by very fast way you can do it by DBMS, because it works certain many things, many queries together, like find out the location, find out the domain, find out salary is greater than this and that, all the things together. It can work through DBMS. So what is DBMS? DBMS क्या कर रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा है डेटाबेस को, यानी कि डेटा को निकालने के लिए भी और डेटा को उसके अंदर डालने के लिए. फॉर एग्जांपल कि भाई 1000 लोग थे और दो मतलब दो चार और लोग ऐड हुए. सो टू एडिंग दैट into that rows, DBMS can be easily do that work. ओके, और अगर कोई कॉलम भी एक्स्ट्रा ऐड करना है कि भाई हमें पार्किंग और समथिंग समथिंग का भी कुछ ऐड करना है कि कौन लोग बाइक लाते हैं, कौन लोग कार लाते हैं, वो भी हम ऐड करेंगे. तो वी कैन डू दिस थ्रू दी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अंडरस्टैंड? यहाँ तक के लिए तीन चीजें: डेटा हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये कौन सी भाषा समझता है? ये समझता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि SQL. ये इस वाली भाषा को समझता है और ये भाषा बिल्कुल इंग्लिश जैसी है. दिस इज जस्ट सिंपल लाइक इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश. लाइक यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन. सेलेक्ट, सेलेक्ट करना, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, this kind of things. So DBMS understand SQL, and SQL is simply like English. If you know the English, you can work over the SQL. If you do not know the English, so go first and learn English and then come here to learn SQL. Okay, so just
कम ओवर दी एसक्यूएल। एसक्यूएल समझ में आ गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। जो अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें कमांड होती है, कुछ लॉ है, किस तरीके से हमें डेटा को निकालना है, डेटा को जो डेटाबेस के अंदर उसमें ही कुछ ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम एसक्यूएल के थ्रू करेंगे। ओके, और इसके भी कुछ टाइप है, कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या काम, थोड़ा सा आप यहाँ को दिख ही रहा है आपको, इट्स लाइक फिल्टरिंग, शॉर्टिंग और दिस काइंड ऑफ थिंग्स. If you go here, I will just tell you or show you something like where it is. No, it is here. And define this. Yes, here it is the SQL. So SQL are this kind of thing. These types where like data query language, data definition, manipulation, DCL or TCL transaction. You can see that. So which are in a highlighted. We will do it in later videos where, because it is something advanced version, advanced SQL. So we will do this thing in this three in this video. Okay, and there are also certain things, means what we will do in these video or the next videos. These are the things like show database or these till the 17. Are you able to see that? Yes, you are able to see that. ये हम कहाँ पर काम करेंगे, सारा का सारा कहाँ पर काम करेंगे, जस्ट दिखा देता हूँ। ये है माई एसक्यूएल वर्क बेंच. यू कैन सी दैट where it has gone. Yes, it is MySQL workbench. It is DBMS, स्पेशली RDMS. अब ये क्या कह रहे हो, RDMS DBMS, पहले सही से बता दो क्या है, कहना चाह रहे हो. सो जस्ट go quickly here and I will show, because one thing has missed by me and it is where it is here. सो डेटाबेस के टाइप होते हैं कि भाई जिसके अंदर डेटा टेबल के फॉर्म में होता है उसको कहते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस, और जो कि हमारा माई एसक्यूएल है, जिसको हम अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, काम करेंगे. ठीक है, कुछ होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कि भाई जो डेटा टेबल के फॉर्म में नहीं होगा, अदर फॉर्म में होगा, कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, इमेज के फॉर्म में होगा, वट होगा, वो दूसरा कुछ डेटाबेस है जो कि हमें नाम भी लिखा हुआ है. ठीक है, मैंगो डीबी एंड कैजेंड्रा. ठीक है, कुछ है कि जो भाई हम क्लाउड पे हम लोग सारा सेव करते हैं, क्लाउड डेटाबेसेस, जिसके नाम है ये वाले AWS और क्लाउड, गूगल क्लाउड. गॉट इट. सो अब हम सीधा काम कर लेते हैं, दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि व्हाट इज दिस माई एसक्यूएल वर्क बेंच. सो व्हाट इज दिस इज वेयर दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब इसके अंदर क्या है, डेटाबेसेस है. डेटाबेस कहाँ दिखेंगे आपको, यहाँ दिख जाएंगे, ये जो नाम सारे दिख रहे हैं आपको, दीज आर द डेटाबेसेस. अब तरह के अंदर अब क्या है, टेबल के रूप में सब कुछ यहाँ टेबल है, और ये व्यू स्टोरेज प्रोसीजर. अभी ज़्यादा गहराई से अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है. और ये अदर बाकी के डेटाबेसेस हैं. ठीक है, यहाँ पर हम अपने कमांड लिखेंगे. जैसी कमांड, पहली कमांड जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ कि शो डेटाबेसेस. अब मैंने यहाँ पर कैप्स में लिख दिया, तो कैप्स में भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, ये कि सेंसिटिव नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो मैंने पहली कमांड अपनी लिख डाली है, सिंपल इंग्लिश है, शो दिखाओ डेटाबेसेस कौन कौन से हैं, और ये क्या है अपना सेमीकोलन. इससे ये टर्मिनेट होती है, खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पर हमारी क्वेरी पूरी कंप्लीट होती है. और इसके थ्रू हमने इसको रन कर दिया. रन करने के साथ हमें यहाँ दिख गया आउटपुट. ये रहे हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस, अप्सरा, डेस्कटॉप, इन्फॉर्मेशन, समथिंग समथिंग समथिंग. और नीचे आ रहा है ये कुछ एक्शन आउटपुट की हमारी क्वेरीज, इट इज रन विदाउट एरर और विद एरर. इफ देयर इज एरर इट विल शो यू हियर. इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से. तो यहाँ पर ये रन हो चुकी है और दिस थिंग्स. ठीक है, तो इसी की तरह जैसे हम क्या करेंगे, काम करेंगे. यहाँ पर मैं अपनी शक्ल दिखा देता हूँ जल्दी से. कहाँ पर हूँ मैं, आई एम शायद ये रहा यहाँ पर. स्क्रीन टी क्या है, इस वीडियो को जिसमें के माध्यम से मैं बना रहा हूँ. ठीक है, ये वाला सारा हम काम करेंगे इन इस वाले एसक्यूएल के अंदर, लर्निंग के अंदर. जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ऐसे कैसे सेलेक्ट काम करता है, ये काम करता है. ये था थोड़ा सा बेसिक बताने का कि क्या है डेटा, क्या है डेटाबेस, डीबीएमएस, एसक्यूएल. समझ में आ गया? नहीं आया अगर तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हैं. और ये जो मैंने शीट बनाई है इधर, इसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नहीं तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. अभी हम आगे पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें क्या है. ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ख़त्म, ये इधर से हो जाएगा ख़त्म. स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.